Dear students, Assalamu alaikum. I am your instructor Asma Zahira and welcome you all in the course of Introduction to Exceptionalities. Today we will discuss our seventh lecture, and agenda of the lecture is to start unit 3, that is persons with learning disabilities. In our fourth, fifth, sixth lecture we discussed unit 2, that was based on to have a know-how about persons with intellectual developmental disabilities, or you can say mentally challenged. Now in these lectures from 7 to onward, 7 to 9 hopefully, we will discuss about learning disabilities, and in today's lecture we will discuss on definition of learning disabilities and identification as assessment criteria for children with learning disabilities. So, what is the phrase learning disabilities? The phrase learning disability was coined in 1962 by Samuel Kirk. It came to life during discussions at a 1963 conference with concerned parents and professionals that focused on students who, in spite of average or above average intelligence, seem to be encountering substantial difficulties in school. Prior to 1962, these students has been labeled with terms such as minimal brain dysfunction or जैसे स्ट्रॉस सिंड्रोम एंड ब्रेन इंजर्ड. सो सैमुअल किर्क ने इस टर्म को पोज किया था, इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका पर्पस ये था कि जितने भी पेरेंट्स या प्रोफेशनल्स थे जो ये कंसर्न रखते थे कि उनके बच्चे जो है उनकी एवरेज या अबव एवरेज इंटेलिजेंस है, लेकिन वो अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स में स्कूल लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, तो इनको मीट अप किस तरह से किया जाए. बहुत से लोगों ने ये रेकमेंड किया कि ये ब्रेन डिसफंक्शन हो सकता है, ब्रेन इंजरी हो सकती है, या कोई भी ऐसी कंडीशन जो है वो अटैच कंडीशन हो सकती है. सो किर्क ने ये पर्सपेक्टिव दिया कि स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वर अ हेट्रोजीनियस ग्रुप who shared one commonality. ये हेट्रोजीनियस करेक्टरिस्टिक्स के साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज का ग्रुप था, लेकिन इनकी कॉमनैलिटी जो एक चीज़ वो शेयर करते थे वो ये थी कि न्यूरोलॉजिकली बेस्ड प्रॉब्लम्स थी इन सब के साथ, जो कि इनकी लर्निंग को वेरियस वेज में अफेक्ट कर रही थी. ये किर्क का पर्सपेक्टिव था. So, learning disability, 11 different definitions of learning disabilities have emerged or enjoyed some degree or acceptance since the field inception in the early 1960s. Created by individuals, professionals, and committees of professionals and lawmakers, each definition provide a slightly different slant. किन लोगों ने ये डेफिनेशंस बनाई? इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स ने, रिसर्चर्स ने, कमेटी ऑफ प्रोफेशनल्स ने, लॉ मेकर्स ने, और हर डेफिनेशन का अपना ही एक स्लांट था लर्निंग डिसेबिलिटीज को प्रेजेंट करने का या लर्निंग डिसेबिलिटी. So, current estimates indicate that 48% of the school age children who receive special education are categorized as learning disabled. Why has this population expanded to include such a large number of children? One possible way or explanation for the expansion is the way we have defined learning disabilities. The 48% of the school age children are or have enrolled in learning disabilities. So they are saying it could be the reason of the definition of learning disabilities, how we have defined learning disabilities. So let's come to the definition of learning disabilities. The US Department of Education, or you can say the IDEA Individualized Education Act जो है आपका, इंडिविजुअलाइज्ड डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, इन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में क्या कहा या क्या इन्होंने डेफिनेशन दी. सो इसका रेफरेंस मौजूद है कि डेफिनेशन आर्टिकल जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का आर्टिकल है. सो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को इन्होंने 3 क्राइटेरिया में डिफाइन करने की कोशिश की: इन जर्नल, और डिसऑर्डर्स इंक्लूड, और डिसऑर्डर्स नॉट इंक्लूडेड. सो इन जर्नल, द टर्म स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स अ डिसऑर्डर इन वन और मोर ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस involved in understanding or in using language spoken or written, which disorder may manifest itself in the imperfect ability to listen, think, speak, write, spell, or to do mathematical calculations. Specific learning disability क्या थी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक या एक से ज़्यादा बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो हैं लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, चाहे वो लैंग्वेज रिटन है या स्पोकन है,
जब वो प्रोसेसेस जो हैं इफेक्ट हो रही हैं और वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, किस तरह से मैनिफेस्ट होंगे, एक बंदे की लिसनिंग एबिलिटी में, थिंकिंग एबिलिटी में, स्पीकिंग एबिलिटी में, राइटिंग, स्पेलिंग और मैथमेटिक कैलकुलेशन की एबिलिटी में ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी उसके एक या एक से ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में प्रॉब्लम का होना, लैंग्वेज को यूज़ करने में या अंडरस्टैंड करने में, चाहे वो रिटन है चाहे वो स्पोकन है। सो ये डिसऑर्डर्स किन और कैटेगरीज को, किन और चीज़ों को इन्वॉल्व करता है? डिसऑर्डर्स इंक्लूड सच टर्म्स इंक्लूड सच कंडीशंस एज परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज, ब्रेन इंजरी, मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, डिसलेक्सिया एंड डेवलपमेंटल aphasia. Disorders not included. Such terms does not include a learning problem that is primarily the result of visual hearing or motor disabilities, of mental retardation, of emotional disturbances or of environmental, cultural और economic disadvantage. ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे लर्निंग प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से होंगे, हेयरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से होंगे, मोटर डिसेबिलिटीज़ की वजह से होंगे, मेंटल रिटार्डेशन की वजह से होंगे, किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से होंगे या इन्वायरमेंटल, कल्चरल और इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस की तरफ से जो लर्निंग प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें हम लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कहेंगे। जैसे एक बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है, वो लैंग्वेज को लिख नहीं सकता है, रिटन लैंग्वेज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी, और जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है अगर वो आपकी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन उसको नहीं हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लर्निंग डिसेबल है। और इसी तरह से जैसे कि इन्वायरमेंटल, कल्चरल और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, लो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं या लैंग्वेज उन्हें अच्छे तरीके से उसकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लर्निंग डिसेबल है। लर्निंग डिसेबिलिटी का क्लियर कट क्राइटेरिया है कि ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस में इनका डिसफंक्शन है जो कि लैंग्वेज को यूज़ करने में, अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है। और ये परसेप्चुअल डिसऑर्डर के बच्चों के साथ हो सकता है, ब्रेन इंजरी के बच्चों के साथ हो सकता है, मिनिमल ब्रेन डिस्फंक्शन के साथ, डिसलेक्सिया और डेवलपमेंटल अफेजिया के साथ। जबकि बाकी जो डिसेबिलिटी कैटेगरीज हैं उनके लर्निंग प्रॉब्लम्स लर्निंग डिसेबिलिटी कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। So, operationalizing the federal definition. When using the federal definition to identify students with learning disabilities, most states require three criteria: a severe discrepancy between the student's intellectual ability and academic achievement, an exclusion criterion, the student's difficulties are not the result of another non-condition that could cause learning problems, और अ नीड फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज। पहला क्राइटेरिया क्या है इस डेफिनेशन के हवाले से कि स्वेयर डिस्क्रिपेंसी होनी चाहिए बच्चे के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, आईक्यू स्कोर्स में और उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स में। जब बच्चे के आईक्यू स्कोर्स और एकेडमिक अचीवमेंट जो हैं वो ना मिल रहे हो, जैसे हमने पहले डेफिनेशन में और डिबेट में डिस्कस किया कि अबव एवरेज और एवरेज जो है उसके आईक्यू स्कोर हैं, लेकिन उसकी एकेडमिक अचीवमेंट जो है उस लिहाज से नहीं है, मीटअप नहीं करें, डिस्क्रिपेंसी है, ग्रेट डिफरेंस है, स्वेयर डिस्क्रिपेंसी है, तो इसका मतलब है कि बच्चा लर्निंग डिसेबल है। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या, ऐसे लर्निंग डिफिकल्टीज जो कि किसी और कंडीशन या किसी और डिसेबिलिटी की वजह से हो तो हम उसे लर्निंग प्रॉब्लम्स या लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कहेंगे। और अगर बच्चा जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ है तो उसके लिए स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज की ज़रूरत है। सो एपीए की डेफिनेशन क्या कहती है लर्निंग डिसेबिलिटी के हवाले से? द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन यूजेस द टर्म स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। इन स्पेसिफिक का वर्ड साथ अटैच कर दिया। इन 2013 द एपीए रिवाइज्ड इट्स डेफिनेशन ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स इन द फिफ्थ एडिशन ऑफ द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। डीएसएम के बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में ही, हमने इस पर बात की थी। जो डिफरेंट डेफिनेशंस के क्राइटेरियाज होते हैं उनको डिफाइन करने के जो अथॉरिटेटिव सिस्टम्स हैं, सो डीएसएम भी एक सिस्टम है मुख्तलिफ डेफिनेशन को, मेंटल डिसऑर्डर्स के जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको डिफाइन करने का। तो उसने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में ये बताया है कि एज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट इम्पीड्स लर्निंग ऑफ एकेडमिक स्किल्स, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है जो कि एकेडमिक स्किल्स की लर्निंग को लिमिट कर देता है। स्टूडेंट्स हु आर डायग्नोस्ड विद द स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर परफॉर्म वेल बिलो एवरेज इन रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स। और ऐसे बच्चे जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स के साथ डायग्नोज हो जाते हैं वो उनकी वेल बिलो एवरेज परफॉर्मेंस होती है रीडिंग में, राइटिंग में और मैथमेटिक्स में।
गर्ल्स के जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, जहां जहां लैंग्वेज का यूज आ रहा है, रीडिंग में भी लैंग्वेज यूज होती है, राइटिंग में भी यूज होती है, मैथमेटिक्स में भी यूज होती है। तो जहां पे लैंग्वेज को यूज करना है या लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, वहां पर ये बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स के साथ जो बच्चे होते हैं। In contrast to previous APA definition, the DSM-5 definition no longer uses the discrepancy criterion for diagnosis. एपीए की डेफिनेशन में इन्होंने डिस्क्रिपेंसी के क्राइटेरिया को नहीं यूज़ किया, जैसे कि आईक्यू और अचीवमेंट में डिस्क्रिपेंसी होनी चाहिए। इन्होंने इस क्राइटेरिया को नहीं यूज़ किया, इन्होंने बस ये कहा है कि एकेडमिक स्किल्स जो हैं वो बच्चे की वेल बिलो एवरेज हैं। So let's come to the identification and assessment criteria, or how to identify and assess the students or individuals with learning disabilities. और learning disabilities आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कहीं भी हो सकती है, ये लाइफ के किसी भी हिस्से में हम learning disability को फेस कर सकते हैं। So, assessments commonly used with students with learning disabilities include standardized intelligence and achievement test, criterion reference test, third is curriculum based measurements, and fourth is direct and daily measurements. So, these four are standardized, or you can say research based assessment procedures to identify and to assess the learning disorders and learning disabilities. So, first one is intelligence and achievement test. Standardized IQ test and individual achievement test, or diagnostic tools. These two comes under the category of intelligence and achievement tests. So these are, you can say, the norm reference test, intelligence test और achievement test जो हैं वो norm reference tests होते हैं. So, standardized IQ test and individualized achievement tests are typically administered during the referral process to determine eligibility for special education services under the learning disabilities category. These tests are widely used as diagnostic tools with children with learning disabilities because the discrepancy between general intellectual ability and achievement remains a primary factor in determining eligibility for special education services. These norm reference tests are constructed so that one student's score can be compared with the scores of other students of the same age who have taken the test. ये टेस्ट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें एक बच्चे की परफॉर्मेंस जो है उसके ही एज मेट्स के साथ जिन्होंने टेस्ट दिया हो उनके साथ कंपेयर की जाती है. सो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर असेसिंग ओवरऑल एकेडमिक अचीवमेंट्स इंक्लूड द आयोवा टेस्ट ऑफ बेसिक skills, the Woodcock Johnson 3 tests of achievement and the Wechsler individual achievement test 3. हम इन IQ टेस्ट को जो है अपने पिछले टॉपिक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं. आप भी इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं. हैरियन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि अपने ही scores on these tests and similar tests are commonly reported as grade level equivalents, और इनको कंपेयर किया जाता है अपने ही एज मेट्स के साथ बच्चे के, ताकि आइडिया हो सके कि बच्चा जो है एवरेज से कितना बिलो और कितना अबव फॉल कर रहा है. So second come the criterion reference test. Criterion reference tests differ from norm reference test in that a child scored on a criterion reference test is compared with the predetermined criteria or mastery level rather than with normed scores of other students. मतलब other students के scores के साथ नहीं, बल्कि हमें criteria set कर देते हैं, उसको बच्चे ने meet करना होता है और उसी तक पहुंचना होता है. Criterion reference test can be and often are informally developed by classroom teachers. और criterion reference test जो होते हैं ये normally classroom teacher भी assess कर सकती हैं और उसको plan कर सकती हैं, वो develop कर सकती हैं बच्चे को सेट करने के लिए या असेस करने के लिए. जैसे कि टीचर ने सेट कर लिया क्राइटेरिया कि अगर उसने रीडिंग बच्चे की रीडिंग कैपेबिलिटी चेक करनी है तो वो ये देखेगी कि बच्चा जो है 1 मिनट में 15 वर्ड्स पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता. और अगर नहीं पढ़ सकता तो वो उसने क्राइटेरिया सेट कर दिया. मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, उसने क्राइटेरिया अपना सेट कर लिया, ठीक है, और उस क्राइटेरिया पे वो बच्चे को जो है टेस्ट करने की कोशिश करेगी. थर्ड जो अप्रोच है वो है करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट. एनी मेजरमेंट सिस्टम मस्ट बी वैलिड एंड रिलायबल. Rapidly putting a ruler in a pot of water might yield a reliable measure of 3 inches, but it would not produce a valid measure of the water's temperature. As silly as this example might seem too often,
measure used in education assesses something other than the skills students need to progress in the curriculum. So, curriculum based measurement, also called progress monitoring, entails measuring the growth of students' proficiency in the core skills that contribute to success in school. Curriculum based measurement is a formative assessment method in that it provides information on student learning as instruction take place over time. करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट जो है ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोसीजर है जिसमें बच्चे की इंस्ट्रक्शन जो हम उसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसके नतीजे में उसने क्या इंफॉर्मेशन गेन की है, क्या उसने लर्न किया है, इसको हम वक्तन फ़वक्तन असेस करते रहते हैं। बच्चे की जो लर्निंग है एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हम बार बार ओवर द पीरियड ओवर द टाइम असेस करते रहते हैं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है। जबकि समेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि हम बच्चे को ऑन द होल क्लास के एंड पे एक एग्ज़ाम ले लेते हैं या सेमेस्टर के एंड पे एग्ज़ाम ले लेते हैं, वो समेटिव असेसमेंट कहलाती है। जहाँ पर हम आप बच्चों को जो है साथ साथ असेस कर रहे होते हैं उनकी लर्निंग को, ये करिकुलम बेस्ड असेसमेंट कहलाती है। करिकुलम बेस्ड measurement probes are brief reliable assessments that indicate proficiency of basic skills such as reading, spelling or maths. CBM entails multiple ongoing measures of student performance over time and visual inspection of graphed student data as the basis for instructional decision making. सीबीएम में हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल ऑन गोइंग मेजर्स लेते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ओवर टाइम। ये नहीं कि बस एक दफ़ा ही, जैसे जितनी दफ़ा रीडिंग करवानी है उतनी दफ़ा ही बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको टीचर ने मोनिटर करना है और उसको एक ग्राफ की फॉर्म में मोनिटर करना है। उसकी उसकी बेसिस पे जो है टीचर अपने इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग करेगी कि उसने आगे बच्चे के साथ किस तरह से काम करना है, किस तरह से चलना है, उसकी प्रोग्रेस को एनरिच करने के लिए, उसकी प्रोग्रेस में इजाफा करने के लिए। So, CBM are easy to administer and score, cost and time efficient, and perhaps most important, sensitive to small incremental changes in students' performance over time. सो सीबीएम के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा आसान है इस पे काम करना, इसको सीखना। और इसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि सीबीएम टू मेक इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस द टीचर क्रिएट्स अ ग्राफ, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, एंड ड्रॉज एन एम लाइन फ्रॉम द स्टूडेंट्स बेसलाइन परफॉर्मेंस 20 वर्ड्स पर मिनट, ये इसकी बेसलाइन परफॉर्मेंस है, टू द स्टूडेंट्स एंड ऑफ द टर्म गोल, जो टीचर ने अपना गोल सेट किया कि उसने 100 वर्ड्स पर मिनट पे इस बच्चे को लेके जाना है। इफ द स्टूडेंट इज मेकिंग टाइमली प्रोग्रेस टूवर्ड हिज गोल, his weekly prop scores will be at or above the aim line. If the student is progressing too slowly to meet the goal, a change of instruction is indicated. अगर बच्चा जो है अपने गोल को अचीव करने की तरफ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ठीक है, ऑन गोइंग है उसकी प्रोग्रेस। और अगर बच्चा अपने स्कोर को अचीव नहीं कर पा रहा और उसकी प्रोग्रेस जो है वो क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि टीचर को अपने इंस्ट्रक्शन को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, दोबारा से प्लान करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसके इंस्ट्रक्शन से बेनिफिट ले सके और बच्चा जो है अपने गोल को अचीव करता हुआ आगे बढ़ता जाए। जैसे ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये था 90 वर्ड्स पर मिनट, 100 वर्ड्स पर मिनट। ये बच्चे की बेसलाइन थी कि उसने यहाँ से स्टार्ट किया था। अब टीचर ने अपनी इंस्ट्रक्शन को, जहाँ पे टीचर को ये लगा कि बच्चे की परफॉर्मेंस तीसरे चौथे हफ्ते में एक तरह की आई है, यहाँ पर टीचर ने अपनी इंस्ट्रक्शन को चेंज किया और इंस्ट्रक्शन को चेंज करने के नतीजे में बच्चे की परफॉर्मेंस में इजाफा हुआ। सो मजीद होता जा रहा है, फिर बच्चा यहाँ पर आकर स्टक हो गया, फिर यहाँ पे टीचर को अपनी इंस्ट्रक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। सो ये है करिकुलम बेस्ड मेयर की एग्जाम्पल कि करिकुलम बेस्ड मेयरमेंट में बच्चे की फ्रीक्वेंट प्रोग्रेस जो है वो मॉनिटर की जाती है और उसके बेसिस पर इंस्ट्रक्शंस को प्लान किया जाता है, जैसे कि वीक वाइज परफॉर्मेंस जो है हम बच्चे की ट्रैक कर सकते हैं। Curriculum based measures are easy to administer and score, cost and time efficient, and perhaps most important, sensitive to small incremental changes in student performance over time. द डायनामिक इंडिकेटर्स ऑफ बेसिक अर्ली लिटरेसी स्किल डायबल्स जो है ये काफ़ी वैलिड और रिलायबल करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट का एक प्रोसीजर है या एक सेट इसका मिलता है तैयार हुआ हुआ। Diables was developed to be an efficient indicator of key reading skills to enable the early identification of children at risk for reading difficulties and to assess the effects of intervention designed to prevent such failure.
So DIBELS consist of a set of 1 minute fluency measures used to regularly monitor the development of pre-reading and early reading skills. ठीक है, ये DIBELS जो है आप इससे नेट पे सर्च कर सकते हैं कि ये क्या है, लेकिन कहा यह जाता है कि रिलायबल और वैलिड करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट की एक टेक्निक है जो कि रीडिंग डिफिकल्टीज को असेस करने के लिए यूज़ की जा सकती है। DIBEL के काफ़ी सबसेट भी हैं और एक कंपोजिट स्कोर सेट भी है जिसको यूज़ करते हुए हम ये बता सकते हैं कि ये कितना अफेक्टिव है या कितना अफेक्टिव नहीं है। सो उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास आ रहा है वो डायरेक्ट डेली मेजरमेंट की टेक्निक आ रही है। द डायरेक्ट डेली मेजरमेंट द कॉर्नरस्टोन ऑफ द बिहेवियर अप्रोच टू एजुकेशन entails obtaining a measure of the student performance each time a specific scale is taught। सो डेली आपने मेजर करना है। करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट में क्या होता है कि हम वीकली बच्चे की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। सो डायरेक्ट डेली मेजरमेंट में हम डेली बच्चे की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। डायरेक्ट डेली मेजरमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, enabling the teacher to modify instruction in accordance with changing or unchanging performance rather than intuition, guesswork, or the result of a test that measures something else। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नहीं है कि टीचर जो है वो अंदाजा ही लगा रही है कि हाँ अगर बच्चा आज इतने वर्ड्स पढ़े तो कल इतने पढ़ लेगा, या आज उसको इतनी रीडिंग प्रॉब्लम है तो कल ये कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि इसमें ये हो रहा है कि टीचर जो है डेली स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है और उसके लिहाज से वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को प्लान करती है। सो ये जो हमने पहले डिस्कस की है ये 4 टाइप्स थी जिसमें आपने इंडिविजुअलाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट को डिस्कस किया। हमने इसमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को देखा, करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट्स को देखा और डायरेक्ट डेली मेजरमेंट्स को देखा। एक टोटली न्यू अप्रोच जिसकी तरफ हम बात करते हैं वो है आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिसेबिलिटीज विद रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के हवाले से भी रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन को उसमें फिट करके या इम्प्लीमेंट करके देखा था कि उनके क्या रिजल्ट्स आते हैं। इसी तरह से हम रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन को लर्निंग डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए और उन पे काम करने के लिए या लर्निंग डिसेबिलिटीज को प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो the basis premise of RTI and response to intervention is that a low achieving student's response to increasingly intensive, scientifically validated instruction can reveal whether the student's learning difficulties are the result of poor or insufficient instruction or of a disability for which special education is needed। कि बच्चे की जो लर्निंग डिफिकल्टीज वो फेस कर रहा है वो इनसफिशिएंट इंस्ट्रक्शन का नतीजा है या फिर बच्चा जो है स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज जिसके लिए उसे कह दिया गया है वो डिसेबिलिटी को फेस कर रहा है। मतलब जो लर्निंग प्रॉब्लम्स वो लर्निंग डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन की वजह से हैं या फिर उसके डिसेबिलिटी की वजह से हैं, और फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि उसको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। RDI के 2 फंक्शंस हैं रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन एंड सेकंड is prevention. The first purpose of RTI is how to screen and how to identify the learning disabilities, and second function of response to intervention is to prevent the emergence or to prevent the learning disabilities. So, a child failure to progress in response to scientifically validated instruction eliminates instructional quality as a viable explanation for poor academic growth and suggests evidence of a disability. Children who respond favorably to RTI's increasingly intensive instruction benefit from the preventive aspect of the approach. So these two can be the how to identify and how to prevent the learning disabilities using RTI. So RTI have many research supports. We can discuss here how RTI or how different researchers have supported the method of RTI and how effective is RTI to identify and to screen out the learning disabilities. So O'Connor and colleagues in 2013 found that one third of students with learning disabilities were not identified until they reached 4th grade। 4th grade तक पहुंचते तक बहुत से बच्चे जो हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ वो आइडेंटिफाई ही नहीं हुए होते। सो RTI कैन हेल्प schools identify students with learning disabilities earlier and reduce the number of children falsely identified। RTI पहले से ही
मतलब आइडेंटिफाई कर लेता है कि कितने लर्निंग डिसेबिलिटीज के बच्चे हैं, और जो फॉल्सली आइडेंटिफाई हुए होते हैं उनको भी स्क्रूड आउट कर देता है, उनको उस कैटेगरी में से निकाल देता है. So, Targesen reported a substantial drop in identification rates for learning disabilities over a 3-year period at schools that implemented RTI. कि RTI की implementation से substantial drop rate आया learning disabilities की identification में और उनके enrollment में. So, this is the effectiveness of RTI in learning disabilities. Although there are numerous approaches to RTI, a three-tiered model is most common. Each tier is designed to provide increasingly more intensive support for the student who need it. So, the following examples describe how RTI can be used to prevent reading problems that identify children who need special education services for reading disabilities. So, here is the RTI model and the three tiers. Those are describing the RTI in different settings. First tier is primary intervention in the general education classroom, as we have discussed RTI earlier. So, first tier was general education classroom, second tier was general education classroom with supplemental instructions, and third tier was totally special education or remediation instructions. So let's come to the first tier, that is primary intervention in the general education classroom. All students receive primary intervention in the form of evidence-based curriculum and instruction in the general education classroom. So there will be frequent progress monitoring in the form of curriculum-based measurement tracks the performance of students whose scores on the screening test tables fall below benchmarks of critical reading skills. Students are considered at risk if both their level of performance and rate of growth on the CBM are well below those of their classmates. उनके classmates से अगर बच्चों का प्राइमरी इंटरवेंशन बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, जैसे बच्चे जो हैं बाकी अपने क्लासमेट्स के साथ इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, रीडिंग इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे की रीडिंग रेट जो है, रीडिंग अचीवमेंट फ्रीक्वेंट प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के नतीजे में और करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट के नतीजे में वीकली बच्चे की रीडिंग अचीवमेंट जो है अपने क्लासमेट्स के लिहाज से पूरी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो एट रिस्क है. और अगर बच्चा कंटिन्यूसली एट रिस्क रहता है तो इसका मतलब है कि उसको सप्लीमेंट्री टायर 2 इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, जब बच्चा टायर 1 में जर्नल इंस्ट्रक्शन और जर्नल मेथड्स के साथ मीट अप नहीं कर पा रहा. सो लेट्स कम टू द टायर 2. If student is having difficulty in tier 1 to achieve the academic achievement scores, so he or she will require supplemental tier 2 instructions. What are supplemental tier 2 instructions? Tier 2 is called secondary intervention. Students who are struggling in the general education program receive an intensive fixed duration trial, for example 10 to 12 weeks of small group supplemental tutoring using a research validated program. A student who makes satisfactory progress during this intensive prevention trial is not considered to have a disability. अगर बच्चे को स्मॉल ग्रुप सप्लीमेंटल ट्यूटरिंग प्रोवाइड की जाती है और बच्चे को मतलब के पढ़ाने की या उसकी रीडिंग डिफ़िकल्टीज को कोशिश दूर करने की कोशिश की जाती है, और अगर बच्चा इस टायर में आपको सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे देता है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ जाती है, तो इसका मतलब है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है. लेकिन अगर बच्चा जो है उसकी उसको प्रोग्रेस वो मॉनिटर नहीं कर पाता है, उसको दो तरह से हम इसे डुअल डिस्क्रिपेंसी क्राइटेरिया दैट डेजिग्नेट अ स्टूडेंट एज नॉन रिस्पॉन्सिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट फेल टू मेक एडिक्वेट ग्रोथ इन द प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीट टायर 2 इंटरवेंशन. हम इसमें डुअल डिस्क्रिपेंसी क्राइटेरियन रखते हैं. पहला ये कि बच्चे को आप रीडिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको ग्रोथ रेट शो नहीं कर रहा, ठीक है. और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ट्रायल 2 कंप्लीट हो जाता है और फिर भी बच्चा जो है ग्रोथ रेट शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ है. और अगर बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ है तो हमें टायर 2 की जो इंस्ट्रक्शन है, टायर 2 की इंस्ट्रक्शन इस तरह से हो सकती है कि 10 टू 12 वीक्स के बच्चे को रीडिंग सेशन दिए जाएंगे, और वो रीडिंग सेशन लेने के बावजूद अगर बच्चा जो है वो
उनको उस अचीवमेंट को मीट नहीं कर पा रहा जो कि जनरल एजुकेशन क्लासरूम में वापस जाने के लिए ज़रूरी है, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है सेकंड जो टायर टू है उसका सेकंड ट्रायल लेगा, मतलब टायर टू को दोबारा रिपीट करेगा, फिर से हम उसे 10 to 12 रीडिंग सेशंस देंगे जब तक बच्चा जनरल एजुकेशन क्लासरूम के क्राइटेरिया को मीट करने के काबिल नहीं हो जाता। ठीक। ग्रुप इंस्ट्रक्शंस थी, स्मॉल ग्रुप सप्लीमेंटल ट्यूटरिंग थी, मतलब हो सकता है एक से ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो और हमने उनको स्मॉल ग्रुप से इंस्ट्रक्शन दी ताकि वो दूर हो जाए उनकी प्रॉब्लम। ऐसे बच्चे जो कि एक्सेल करेंगे उस एरिया में उनको हम लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जो कि उनको रेमेडियल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई एक थोड़ा से टाइम के लिए, टाइम आउट करके उनके क्लासरूम में से 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए उनको 10 से 12 हफ्ते हमने रीडिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड की, लेकिन फिर भी उनकी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो इसका मतलब है कि हम टायर टू को दोबारा से रिपीट करेंगे। और टायर टू रिपीट करने के बाद भी अगर वही सेम प्रॉब्लम रहे तो इसका मतलब है कि बच्चा एलिजिबल है टायर थ्री में जाने के लिए या स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज के लिए। So, Tier 3 is tertiary intervention. In most RTI models, Tier 3 is special education. Some special educators recommend that students who do not make progress with small group intervention in Tier 2 receive intensive individualized intervention before a determination of special education eligibility. स्पेशल एजुकेशन में भेजने से पहले टायर थ्री की एक इंटेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन प्रोवाइड की जाती है। टायर टू में क्या था कि ग्रुप सप्लीमेंटल ट्यूटरिंग थी, और टायर थ्री में क्या है, इंटेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन जो है वो बच्चे को प्रोवाइड की जा रही है ताकि बच्चा जो है इससे गो थ्रू हो जाए। और फिर उसके बाद अगर टायर थ्री में भी बच्चे को इंटेंसिव इंटरवेंशन प्रोवाइड करने के बाद भी, इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन प्रोवाइड करने के बाद भी वो उसमें नहीं एक्सेल कर पाता, तो फिर तो टोटली स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज का हकदार है, क्योंकि वो लर्निंग डिसेबल्ड के तौर पर डिक्लेयर हो जाता है। So, potential benefits and goals of RTI. First is early intervention for struggling learners. RTI provide early intervention for struggling learners or struggling readers. So, second is provision of reduction in the number of students referred for special education, especially culturally diverse learners. ऐसे learners जो कि culturally diverse होते हैं उनके नंबर को काफ़ी कम देखने में मिले हैं, इनके रेशो कम हुई है। Provision of more instructionally useful data than those provided by traditional methods of assessment and identification. So, RDI provides us latest instructionally useful data of the assessment and identification. Increased likelihood that students are exposed to differentiated instruction and high quality instruction in the general education classroom by stipulating the use of evidence based instructional practices. So, service to all students with achievement problems, so that only those students who fail to respond to multiple levels of intervention efforts receive the diagnosis of learning disabled. आरटीआई में हम क्या करते हैं, हर हद तक ये कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है वो उस कोर्स से गो थ्रू हो जाए। जब वो उस कोर्स से गो थ्रू नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है उसकी इंस्ट्रक्शंस को। और इसका मतलब है कि जब आपने तीनों लेवल जो हैं वो तीनों टायर्स जो हैं वो आरटीआई के कंप्लीट कर ली हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो लर्निंग डिसेबल्ड है अगर फिर भी उसकी इंटरवेंशन इम्प्रूव नहीं हो सकी। हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन का क्या क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो हमने ये देखा है कि हमने किस तरह से वो आरटीआई पे हमने बात की है। डेफिनेशन के बाद हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट को देखा है। आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट में हमने 4 तरीक़ेकार डिस्कस किए हैं। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मेजर्स को यूज़ किया है, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड को, करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट्स को और डायरेक्ट डेली मेजरमेंट्स को। इसके अलावा हमने एक नई अप्रोच की बात की जो कि आरटीआई अप्रोच थी, जहां पर जनरल एजुकेशन क्लासरूम में जब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे होते हैं तो उन्हें हमने एक्सेल किस तरह से करवाना है। उसमें हमने 3 टायर्स देखे, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। टायर 1 में हम बच्चे को जनरल एजुकेशन क्लासरूम में जनरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तब भी अगर वो रीडिंग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हो करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट की प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के साथ, तो फिर हम उसको जो है टायर 2 में भेजते हैं। और टायर 2 में बच्चे को ये कोशिश करवाई जाती है कि टायर 2 में बच्चे को ये कोशिश करवाई जाती है कि वो जो है
जैसे ग्रुप सप्लीमेंटल इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती हैं, और उसके लिए डुअल डिस्क्रिपेंसी क्राइटेरिया रखा जाता है। हाँ, अगर बच्चा एक लेवल में वो नहीं एक्सेल कर पाता तो फिर हम उसको दूसरे लेवल की तरफ लेकर जाते हैं, या उससे ट्रायल टू जो है वो रिपीट करने को कहा जाता है। और ट्रायल टू रिपीट करने के बाद अगर फिर भी रिजल्ट्स ऐसे आए कि बच्चा जो है जनरल एजुकेशन क्लासरूम या टायर वन में वापस नहीं जा सकता, तो फिर हम उसको इंडिविजुअलाइज्ड इंटेंसिव इंटेंसिव इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। और उसके नतीजे में बच्चा अगर उस टायर में भी इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन प्रोवाइड करने के बाद भी रीडिंग डिफिकल्टीज पे काबू नहीं पा पाता, और उसकी अचीवमेंट टेस्ट जो हैं वो अपनी क्लास के साथ अपनी नॉर्म के साथ नहीं आते हैं, टायर वन में वो जाने के काबिल नहीं होता, तो फिर हम उसके लिए स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज को प्लान करते हैं। सो कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स हमने आरटीआई के डिस्कस किए, क्योंकि आरटीआई एक इफेक्टिव मेथड है जिसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को, और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि साथ साथ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो प्लान हो रही हैं, और डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन का जिक्र किया गया है। इसमें हमने बात की है कि रिसर्च बेस्ड इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके नतीजे में बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे काबू पाया जा सकता है। So this was from my side of today's lecture. See you in next lecture. Allah Hafiz.